Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the next chapter of biology, that is chapter 4, named Respiration in Plants and Animals. What is respiration? देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. दैट एनर्जी इज जनरेटेड बाय अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी, and that chemical process is known as respiration. So respiration is a vital process that occurs in every living organism. रेस्पिरेशन क्या है? एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर होता है. अब स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं टर्म रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में. क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम टर्म्स हैं? टर्म अलग अलग है, पर क्या दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं है. बोथ टर्म्स आर डिफरेंट. ब्रीथिंग का मतलब है सिर्फ एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना. मींस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. सिर्फ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो प्रोसेस है दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, वो ब्रीथिंग है. रेस्पिरेशन के अंदर एक स्टेप है ब्रीथिंग. इट मींस रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीथिंग से थोड़ा अलग है, जिसमें सिर्फ ब्रीथिंग वाला प्रोसेस तो इन्वॉल्व है. कहने का मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो इनहेलेशन, वो ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज किया जाता है बाय बॉडी फॉर द डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, एंड दैट केमिकल प्रोसेस जनरेट्स द एनर्जी. और वो केमिकल प्रोसेस जो है वो क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है along with the carbon dioxide, and the carbon dioxide generated by that chemical process is exhaled out by our respiratory system. This complete process is known as respiration. इस complete process को respiration कहा जाता है. So respiration को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ग्लूकोज प्लस oxygen give rise to carbon dioxide plus water plus energy. This is the chemical process that is involved in respiration. Means ये ऑक्सीजन जो है ये कहां से आएगी? जो हम एयर को इनहेल करेंगे. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? जो केमिकल प्रोसेस से जनरेट हुआ है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे. तो वी कैन से ब्रीथिंग इज अ स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. नाउ the difference between breathing and respiration, there are few parameters on the basis of which the difference between two is noted down. ठीक है. So the very first parameter is types of process. Breathing is a physical process, while the respiration is a chemical process. Next parameter is process. It involves the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, while respiration involves the oxidation of glucose. Oxidation process I already explained in the chemistry chapter. What is oxidation? Now the location is it takes place in and out of the lungs. जो lungs एक body part है वहां से जो है in and out of air take place. So only in this particular breathing process, lung is the main organ that is involved in it, while respiration is carried out in every cell
एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक सेल के अंदर और हर एक टिश्यू के अंदर दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, रेस्पिरेशन। नाउ एनर्जी, इन केस ऑफ ब्रीथिंग नो एनर्जी इज रिलीज्ड, no energy is released, while in case of respiration energy is released. These are the differences between the breathing and the respiration. Next topic that we are going to discuss today is respiration in plants. How the respiration is carried out in plants. हर एक living organism को survive करने के लिए energy चाहिए होती है, and that energy he gets from the respiration. So in case of plant also they require energy for their life processes. अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में मैंने एक टर्म पहले लिखी थी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, एंड the substance that is combined with oxygen, that substance is said to be oxidized. उस substance को क्या कहा जाता है, oxidized। उस substance को oxidized substance कहा जाता है। भी हमने पहले पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, और अपना खाना बनाने के लिए उनको एक प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और ग्लूकोज जो है वो जनरेट करते हैं। अभी जब रेस्पिरेशन की मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी उसमें क्या लिखा था कि ग्लूकोज को हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। सो हियर इज अ डायग्राम शोन ऑन द बोर्ड इन विच अ प्लांट इज शोइंग। During the daytime, plants absorbs the carbon dioxide to do the photosynthesis and releases the oxygen. While on the right side of the picture, it is showing the respiration where plants absorb the oxygen to get the substance that is glucose, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए प्लांट नाइट टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो इट मींस फ्रॉम द पिक्चर इट इज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर ऑपोजिट प्रोसेस। दोनों क्या हैं, बिल्कुल ही उल्टे प्रोसेस हैं। अब इनके बीच में हम डिफरेंस जो है वो देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन photosynthesis and respiration? Now, the difference between photosynthesis and respiration, there are few parameters on the basis of which we are differentiating the two, photosynthesis and respiration. First one is occurrence. Photosynthesis generally occurs only in the green plants, while respiration takes place in all the living organisms, whether they are human beings, they are animals, or they are plants. राइट, प्लेस ऑफ अकरेंस। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर होता है प्लांट्स के अंदर, बट इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज अकरिंग? इट इज अकरिंग इन द chloroplast. The plants in which chloroplasts are present, only those plants can do photosynthesis. Otherwise, if the chloroplast is absent, then that plant is not able to photosynthesize the food. Now, in respiration takes place in mitochondria part. This mitochondria we study in the first chapter of the biology, in which we study the cell structure. There are two types of cell structures, prokaryotic cell and eukaryotic cells, and in that we discuss the mitochondria. What is the function of the mitochondria? Then glucose. The glucose is formed in case of photosynthesis, and that glucose which is formed during the photosynthesis process, that is broken down in case of respiration. वो respiration के केस में क्या होती है, broken down होती है। अब बात करोगे कि
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो सिर्फ प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में तो ग्लूकोज हमें समझ में आ गया कि हमारे पास अवेलेबल है जो फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज हुई, बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ये ग्लूकोज कहां से आती है? ये हमने चैप्टर प्रीवियस 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 वेयर वी डिस्कस द न्यूट्रिशन, जहां हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था द कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन ब्रोकन डाउन जनरेट्स द ग्लूकोज। ठीक है, वो क्या करता है? ग्लूकोज जनरेट करता है, या कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारा फूड जो है वो ग्लूकोज को कंटेन करता है, एंड दैट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज इनटेक. For the photosynthesis process, the intake is carbon dioxide and releases the oxygen. While in case of respiration, the intake is oxygen and releases the carbon dioxide. Yes. Now the next parameter on which basis both these photosynthesis and respiration are differ, they are byproducts. Byproducts is the term which is generated, जो जनरेट की जाती है, जनरेट होती है एक केमिकल प्रोसेस में, फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं दैट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट। उसको क्या कहा जाता है? बाई प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या था? फर्स्ट प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ दैट इज ग्लूकोज along with the oxygen and water. ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ में बाई प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज जनरेट होता है। while in case of respiration, carbon dioxide, water and energy are the byproducts. Now the next parameters are time of occurrence, कि किस टाइम पर ये प्रोसेस जो है वो अकर होती है। तो फोटोसिंथेसिस occurs during the daytime while respiration occurs throughout the day. Throughout the day means during the daytime as well as during the night time the respiration process is occurring. Without the respiration process, the living organism survival is very difficult. Now the next parameter is production. In this case food is synthesized. फूड सिंथेसाइज होकर के यहाँ प्लांट्स के केस में जो है वो क्या प्रोडक्ट करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। while in this case the product that is the food that is synthesized or the food that the living organism eat, that is broken down, वो broken down होता है with the help of the oxygen and produces the energy. The chemical process or chemical equation that is involved in the photosynthesis is carbon dioxide on reacting with water generates the glucose and the oxygen, and here the presence of sunlight and chlorophyll both are must. If any one of the substance means either sunlight or chlorophyll is absent, then this photosynthesis process doesn't occur. While in case of respiration, the glucose plus on reacting with oxygen, it will generate the carbon dioxide plus water plus energy. Energy is one of the byproduct and it is very important product because respiration का मतलब ही यही है कि वहां पर एनर्जी जनरेट होगी. So this is all about the difference between photosynthesis and respiration. Next we are going to discuss the stomata, and that stomata is present in the leaves through which the exchange of gases occurs. So we are going to discuss the stomata now. The picture of stomata is shown left on the board, and the singular form of the stomata is known as stoma. Singular form इसकी क्या है? Stoma. Stomata are small pores found in epidermis, leaves, stems and other parts of the plant. Parts of the plant. These stomata are guarded by two kidney or
बीन शेप्ड जो आपने राजमा देखी होगी, दैट इज लाइक दैट। किडनी और बिन शेप्ड सेल्स, उन किडनी और बिन शेप्ड सेल्स को क्या कहा जाता है? कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। एंड दीज गार्ड सेल्स, जो ये गार्ड सेल्स हैं, रेगुलेट द opening and closing of स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है उसके अंदर गार्ड सेल्स जो हैं वो भी दिखाए हुए हैं। स्टोमेटा के बारे में मैंने बता दिया कि यह कहाँ प्रेजेंट होता है। अब इसको जो है वो गार्ड कौन करता है? गार्ड सेल्स जो हैं वो गार्ड करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, और उन गार्ड सेल्स की शेप जो होती है वो कैसे होती है? किडनी की जैसी या बीन्स की जैसी। जो आपकी राजमा है एग्जैक्टली वैसी ही शेप होती है। और ये गार्ड सेल्स जो हैं ये हमारे क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करने से होगा क्या? तो स्टोमेटा इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज टू फैसिलिटेट the gaseous exchange, किस किस के बीच में? gaseous exchange between the plants and atmosphere। ठीक है, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज जो है दैट इज पॉसिबल बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर, एंड दैट क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, अब ये हमने बताया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ दीज गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है वो किस तरीके से रेगुलेट करते हैं उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। नाउ द अबव पिक्चर शोज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा, एंड द बिलो पिक्चर शोज द ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा कैसा होगा? नाउ हाउ दिस इज कंट्रोल्ड? द आउटर वॉल in the picture you clearly see that the outer wall of the guard cell is thin and the inner wall of the guard cell is thick। ठीक है, पिक्चर से क्या दिखाई दिया कि आउटर वॉल जो है गार्ड सेल की वो क्या है? थिन है, और जो इनर वॉल है वो गार्ड सेल की क्या है? थिक है। अब सबसे पहला हम फंक्शन पढ़ते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। सनलाइट you can say. During sunlight, first of all, water diffuses in and makes the guard cell turgid and outer wall bulges outward। ये होगा सनलाइट के टाइम में क्या होगा? वाटर जो है वो डिफ्यूज इन होगा, मींस उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? अंदर कम है और बाहर ज्यादा। डिफ्यूजन का मतलब यही है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना। तो वाटर अंदर जाएगा, गार्ड सेल को वो क्या करेगा? टर्जिड करेगा, और आउटर वॉल जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी बाहर की तरफ फैल जाएगी, बल्जेस आउट। इनर वॉल आर ड्रॉन अपार्ट। इनर वॉल जो है वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे से
दूर चली जाएगी। जब एक दूसरे से वो दूर चली जाएगी तो इट मीन्स स्टोमेटा ओपनिंग टेक्स प्लेस। स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो अकर हो जाएगी। द वाटर इज ड्रॉन आउट, ये तो था जब वाटर जो हुआ वो क्या हुआ, डिफ्यूज इन हुआ। अब वाटर इज ड्रॉन आउट, कहां से, फ्रॉम द गार्ड सेल, फ्रॉम द गार्ड सेल। वाटर जो है, अब कंसंट्रेशन अंदर अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, वाटर, देखो वाटर जो है वो बाहर कब आ सकता है, इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है। दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, जो हम मैं आज की वीडियो में ही लेटर ऑन डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, एंड थ्रू दैट प्रोसेस द वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर आएगा, सो द गार्ड सेल्स बिकम्स flaccid and inner walls gets straightened. अब इनर वॉल स्ट्रेटन हो गई तो इट मीन्स स्टोमेटा इज क्लोज्ड। स्टोमेटा जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। दिस इज हाउ द ओपनिंग और वर्किंग ऑफ गार्ड सेल टेकन प्लेस। इस तरीके से गार्ड सेल की जो है वो वर्किंग टेक्स प्लेस होती है। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ट्रांसपीरेशन, आई एम गोइंग टू tell you about a special type of roots that are known as pneumatophores. In few plants, देखो स्टोमेटा तो हर प्लांट के अंदर लगभग प्रेजेंट है ही, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम्स हो आपके पास, या प्लांट का कोई और पार्ट हो। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द रूट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रूट के थ्रू भी पॉसिबल है। नाउ दैट टाइप ऑफ रूट इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दोज रूट्स आर नोन एज न्यूमेटाफोर्स। न्यूमेटाफोर्स से बोलते हैं इनको, या हम इनको ब्रीथिंग रूट्स से बोलते हैं, और ब्रीथिंग रूट्स, दे आर एरियल रूट्स। एरियल रूट्स हैं। अब देखो रूट्स जनरली जो है वो क्या होती हैं, डाउनवर्ड ग्रो होती हैं, ठीक है, पौधों के अंदर। बट इन केस ऑफ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स हमारे कहां पर हैं, स्वैम्पी एरियाज में, ठीक है, दीज एरियल रूट्स आर ग्रोन। उनके अंदर क्या होती हैं, एरियल रूट्स ग्रोन होती हैं। ये रूट्स अब क्या है, एरियल रूट्स हैं, मींस दे आर कमिंग आउट ऑफ द वाटर। ये पानी से बाहर आती हैं। दीज रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर रहती हैं, टू मेक इट पॉसिबल दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस हो और ऑक्सीजन जो है वो पौधे तक पहुंच पाए। दे आर बेसिकली हेल्प्स इन द ब्रीथिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द atmosphere. They help in breathing of oxygen from the atmosphere. Directly. And they are seen in the trees found in swampy areas. For example is mangroves. Mangroves are the example, and the diagrammatic close up of pneumatophore is shown in the above picture,
and the mangrove tree is shown in the below picture. below picture में mangrove tree जो है वो दिखा रखा है, और उसमें मैनग्रोव ट्री की साइड में आप देखोगे तो आपको वुडी स्टेम्स जो है वो बाहर दिख रही होंगी. दे आर नॉट एक्चुअली द वुडी स्टेम्स, दे आर द pneumatophores or the breathing root, and the detailed structure of pneumatophore is shown in the above picture. Now the next topic is transpiration. Now transpiration process basically involves the loss of water. अब ये वाटर का जो लॉस होगा that is in the form of water vapors, in the form of water vapors through stomata. स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का लॉस हुआ है वाटर वेपर की फॉर्म में, that is known as transpiration, and it generally occurs from the aerial parts of the plant. aerial parts of the plant कौन से होते हैं? वो पार्ट्स प्लांट के जो सॉइल से ऊपर ग्रो होते हैं, दे आर नोन एज द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब हमने बता दिया कि ये वाटर का जो लॉस हुआ वो वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ, बट फ्रॉम वेयर दिस वाटर इज कमिंग इनटू द प्लांट. ये वाटर जो है ये प्लांट्स में आ कहां से रहा है? द रूट्स एब्सॉर्ब्स द वाटर. ठीक है, रूट्स जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड to the various parts of the plant for the photosynthesis process, and the water absorbed by the plant, जो पानी प्लांट के द्वारा मतलब रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसमें से कुछ पार्ट पानी का वो यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, एंड द रेस्ट पार्ट, फ्यू पार्ट ऑफ द एब्सॉर्ब्ड वाटर. एब्सॉर्ब्ड वाटर जो है वो कौन सा है? जो रूट से हुआ है, इनटेक हुआ है. एब्सॉर्ब्ड वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, is utilized by photosynthesis process. But जो बाकी बच गया, the rest of the water is rest water part, जो बचा हुआ वाटर पार्ट है that is rest water part is transpirated through the stomata. अब ये एब्सॉर्ब्ड वाटर कहां से आया? वाटर इज एब्सॉर्ब by the plant, by the roots of the plants, by the roots of the plants from the soil. ठीक है, रूट्स जो है पौधे की वो क्या करती हैं? सॉइल से पानी को एब्सॉर्ब करती हैं. उसमें से कुछ पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसको यूज कर लेता है. बाकी जो बचा हुआ पानी है दैट इज इवेपोरेटेड और दैट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा. वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाता है? लूज आउट हो जाता है. बट नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन? एंड दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस is shown right on the board through a picture. Now we are going to discuss the significance of transpiration. Transpiration process जो है उसका itself एक बहुत ही important role है plants के अंदर. अब जब excess of water, सबसे पहला तो इसका significance क्या है? Excess water is thrown out of the cell. सेल के अंदर अगर एक्सेस वाटर है तो वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा. उससे होगा क्या? वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो वहां पर क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट जो है जनरेट होगा ऑन द प्लांट लीव्स, प्लांट की लीव्स में.
अब कूलिंग इफेक्ट जनरेट, देखो वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होंगे स्टोमेटा से लीव्स की, तो क्या होगा वहां पर ऑटोमेटिकली पानी जब इवेपोरेट हो रहा है तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा तो इट मींस इट लोअर डाउन द टेम्परेचर, लोअर डाउन द टेम्परेचर। तभी गर्मियों में जब आप किसी पौधों के पास से, हरियाली या पौधे वाले रीजन के पास से निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो महसूस होता होगा। This is the second effect, and the third effect is transpiration helps in the movement of water from the roots to other parts of the plant, parts of the plant। ट्रांसपीरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है किसके लिए, पानी की मूवमेंट के लिए फ्रॉम द रूट्स, बिकॉज वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ठीक है, एंड इट इज इवेपोरेटेड थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट। सो ये हेल्प करता है उसके अंदर। इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट्स to absorb more nutrients and water from the soil। जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो ट्रांसपीरेशन जो है वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पौधा जो है वो रूट से पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो ट्रांसपीरेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, as the chapter name is respiration in plants and animals. So we completed the first part, that is respiration in plants. In tomorrow's lecture we are going to discuss respiration in animals. So this is all about today's lecture. If you are facing any problem, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.